first. So what is mean? But a mean is another way of saying average. Okay, there is nothing but average. It's nothing but average. And what is average? Mean को हम ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है? It's called sigma xi over n. Normally अगर मैं देखूंगा, no frequency, discrete mean कहते हैं इसको. Okay, this is called discrete mean. Now suppose I give you a data. I give you 2, 4, 1, 0, and 3. And I ask you what's the average. Don't fall for mean for now. So let's talk about average. So average में तुम लोग क्या करते हो? You add them up and divide by number of terms in it. So there are 5 terms in it, so divide by 5. So 4, 2 is 6, 7, 8, 9, 10. 10 over 5 is 2. And when we are done. This is called the mean. This guy is called the mean. अब मीन में तुम्हें कुछ करना नहीं होता, अरेंजिंग वरेंजिंग. ओके, वी विल टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी वाला मीन भी. अभी हम डिस्क्रीट मीन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बस ऐसे डेटाज होंगे, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं होगा. तो मीन तो ये हो गया. अगला बंदा आता है मीडियन. दैट इज मीडियन. मीडियन. अभी हम डिस्क्रीट सेंट्रल टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. अब मीडियन बच्चे दो तरीके से हो सकता है कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एन जो है ऑड है, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर तुम्हारे मीडियन निकाल रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो मीडियन जो होगा तुम्हारा वो n प्लस 1 ओवर 2 टूथ टर्म. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट जो मैंने यहां लिखा हो, टूथ टर्म. और जब n इवन होगा, देन मीडियन कैन बी n ओवर टूथ प्लस n ओवर 2 प्लस 1 टर्म. इन दोनों का एवरेज होगा, मतलब डिवाइडेड बाय 2. This will be your median. So let's talk about this data. इसी के बारे में मीडियन निकालते हैं. 2, 4, 1, 0, 3. इसका मीडियन निकालना है. मान लो the very first step in median always is to write in ascending or descending order. I prefer ascending, so let's write them in ascending order. Arrange करना है पहले उन्हें. So if we write them in ascending order, that will be 0, 1, 2, 3, and 4, isn't it? This will be my ascending order. Now how many terms are there? 1, and I can see 2, then 3, 4, and 5. So there are 5 terms in total, right? So that is odd. Agar n odd hota hai, so what we do? We use this formula. Median is n plus 1 over 2 2th term. I should imply 2th term ka meaning. So n, how many n's are there? 5. So 5 plus 1 over 2 2th term. So that means 6 over 2. 6 over 2 is 3. So third term. So we will look for the third term. Now what is my third term? First, second, third. So this will be my median. और तुम देख भी सकते हो center में पढ़ रहा है. This is my median. So that's how we figure out median. I'm repeating it again. In median, you have to first arrange in ascending order from smaller to the bigger guy. Then you look for the n, that is the number of items you have in your data. It may be odd or even. If it is odd, you have to calculate using n plus 1 over 2th term. Remember, the answer you're getting 2th term is not the answer. You will look for it in the ascending order वाला thing. उसमें जो दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखा मैंने third term, so first, second, third, तो ये मेरा median हो गया. यहाँ तक सबको clear है? If anyone has a doubt, tell me. जल्दी से. यस भैया क्लियर है. Good, very good. It should be clear. नहीं है तो पूछो. सबको क्लियर है? सर एक और बार समझा दो. सर एक और बार समझो, एक और बार समझो. मीडियन अगर दो तरीके से निकल सकता है, जब ऑड होगा, जब इवन. इवन वाले का मैं भी समझाऊंगा, पहले ऑड समझ रहे हैं. जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो, जैसे 5 है इसमें, सबसे पहला स्टेप मीडियन में क्या होता है? यू राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर. जैसे यहाँ पे देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट? छोटे से बड़ा. उसके बाद यू यूज द फॉर्मूला फॉर द ऑड. क्या होता है? n प्लस 1 ओवर 2th टर्म. सो n प्लस 1 ओवर 2th टर्म. सो n कितने हैं? 5 है. सो 5 प्लस 1 ओवर 2th, 6 over 2 is 3th term. So third term देखेंगे, the first, second, third, and that is our median, and we are done. Clear Anirudh now? अभी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी और एग्जांपल्स देखेंगे हम, ठीक है? चलो अब इवन के बारे में बात करते हैं. मान लो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, 2, 3, 1, 0, 4, 5 है, ठीक है? सो हमें इसका मीडियन निकालना है. सो इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज in median you have to arrange in ascending order, descending. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now then you find out the median.
मीडियन ना फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टर्म्स है इसमें 6 1 2 3 4 5 6 टर्म और 6 टर्म के लिए क्या इवन के लिए क्या फॉर्मूला n/2 सो 6/2 2th फिर n/2 + 1 सो 6/2 + 1 over 2 मतलब इन दोनों का एवरेज दो है ना टर्म। अब देखो 6/2 क्या हो गया थर्ड हो गया 6/2 थर्ड 3 + 1 फोर्थ टर्म हो गया over 2 अभी th लगाओ मतलब पोजीशन देखनी है थर्ड टर्म क्या है इसमें 2 है फोर्थ टर्म क्या है इसमें 3 है सो 2 + 3 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2.5 और ये मेरा मीडियन है जो बनती है बात क्योंकि देखो सेंटर में ये दोनों तो पढ़ रहे हैं इन दोनों का भी सेंटर देखो 2.5 पड़ेगा एंड दैट एक्चुअली मेक सेंस यस क्लियर इफ इट इज क्लियर से जय माता दी भैया जय माता दी। जय माता दी। माता दी कर रहा है भैया जय माता दी। चलो तो हमारा मीडियन कंसेप्ट भी क्लियर हो गया अब हम आ जाते हैं मॉड पे मॉड इज द इजीएस्ट वन ऑफ देम ऑल मॉड ओके सो मॉड के बारे में बात करते हैं इसको कहते हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला बंदा है वही मॉड है यही कहा जाता है ओके सपोज आई गिव यू अ डेटा दिस टाइम 0 0 1 1 1 then 2 I ask you what's the mod you look for the guy which is the most number of times repeated you look for one right it is 3 times repeated so mod is 1 the data has a mod of 1 and we are done make sense to everyone भैया मुझे नहीं आया। फिर से देखो ये तो सबसे आसान है भैया अगर तुम्हारे पास डेटा कुछ ऐसा है तुम्हें इसका मॉड बताना है तो वो बंदा ढूंढो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है इसमें यस भैया 1। तो फिर मॉड 1 हो गया खत्म ओके भैया। अगर मान लो ऐसा होता कि मैं 0 एक और बार दे देता तो 2 मॉड हो जाते हैं इसमें 0 and 1 उसको बाय मॉडल डेटा कहते हैं अभी जो तुम करोगे तुम्हारे सिलेबस में यूनी मॉडल डेटा होगा ठीक है सो नॉट गोइंग इनटू दैट ओके so mean median mode for the discrete part we have cleared अब 10th में जब तुम आओगे और अभी भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल का भी होगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टैट्स और ये तुम्हारा बेस मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यू कैन watch the backup video later on now let's start doing some questions okay let me remove my pretty face otherwise you will get distracted as always so let's start with the first one so question पड़ेगा सुशांत पहला क्वेश्चन पढ़े बालक The following numbers of loud goals loud were, the following numbers of goals were scored by a team in a series of 10 matches. 2, 3, 4, बस बेटा मत 0. पढ़े find the mean median mode of these schools important question why जिसमें तीनों पूछा होता है वो हमेशा आता है एग्जाम में क्योंकि वो अच्छा खासा नंबर का बन सकता है चलो अब देखो तो हमारे पास तीनों डेटा इस डेटा का मीन मीडियन मोड निकालना है अभी अभी हमने सीखा है देखते हैं क्या तुम लोग निकाल पाते हो मैं तुम्हें अभी देखता हूँ सबसे पहले क्या होता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है मीन का फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन के एवरेज भी वैसे निकालते हैं राइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम करते हैं और तुम लोग जल्दी से अपने हाथ चलाओगे और मुझे सम बताओगे सम कितना है इसका जल्दी से इसका जोड़ करेंगे जोड़ फिर इसको भाग डिवाइड को भाग कहते हैं हम लोग हिंदी में and there are 10 matches so divided by 10 you don't have to count them even right चलो इतने बैंड बाजा बज रहे जल्दी से बताओ मुझे एक और बंदे की लाइफ बर्बाद हाँ भाई जल्दी सम करो जी 28. हाँ 28 तो फाइन तेरा बैंड बाजा बज रहा है सब मोड 3 है सब मोड 3 है और तो पूछा ही नहीं मैंने बस सम पूछा है हाँ 28 आ रहा है सबका यस सर ओवर 10 तो कितना हो जाएगा ये divided by 10 2.8। 2.8. गुड अब आ जाते हैं मॉड पे सॉरी मीडियन पे
बताओ ये इवन है ऑड है डेटा? कितने सर नंबर? इवन है। इवन है। सबसे पहले अरेंज करेंगे इसको, सो लेट्स अरेंज इट। 0 1 2 3 3 3 3, 4 बार 3 है ना भाई? 4 1 4 2 बार है, 5 1 बार, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, 10 हो गए, अरेंज कर दिया। Now n is 10, that is even. Now for even, if you remember, the formula was this: n over 2th plus n over plus 1 2th observation over 2. So n over 2th observation मतलब 10 by 2th observation plus 10 over 2 plus 1th observation over 2. 10 over 2 कितना आएगा? 5th observation, right? 5th observation, that is 5 plus 2 is 6th observation. 2 से ऐसे करोगे ना 5 आ जाएगा over 2. 5th observation देखते हैं in the ascending one. 1 2 3 4 5 3. 6th observation is also 3. Let's divide them by 2, and 6 by 2 is what? 3. So that is our median. सबको समझ आया? Yes. यस Yes, सर। sir. अब मॉड बता दो बालक, सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा सर है? 3। 3. Good. So mod is 3. That's how we figure out mean, median, mode. So पहला क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से करेंगे सारे बालक और मुझे मीन मीडियन मोड बताएंगे निकाल के खुद से। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू टोटल 5 minutes. Write your answer in the chat option, don't spell it out.
हाँ भाई बालक, सबका हो गया सॉल्व? बच्चों सबका सॉल्व हो गया? यस सर। कुछ अभी भी सॉल्व कर, अच्छा एक एक करके सब बोलेंगे। एक मिनट। अच्छा मैं चैट में देखता हूँ सबका मीन कितना है, राइट? ओके, वेयर इज माय चैट ऑप्शन? अरे मॉड मॉड बताए जा रहे हैं देखो। भैया सबसे आसान नहीं, मीन बताइए, मीन सम निकालिए, इसको डिवाइड करिए, ठीक है? सारे कितने चालू हैं, मोड निकाल के बैठे हुए हैं? टेक योर टाइम, फाइंड आउट द मीन, एड देम अप, डोंट यूज द कैलकुलेटर। सर 82.2। 82.2। और किसी का भी आने दो, फिर पता चलेगा। लेट अदर्स डू एज वेल। यस भैया 82। 82.2 ही आ रहा है सबका? भैया मैं 82 बच्चे वैभव तुम्हारी आवाज कट रही है, डोंट यूज माइक्रोफोन, डोंट यूज इट, यूज चैट फीचर इंस्टेड। बच्चे मीन 82.2 नहीं है। बच्चे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है। अरे भाई कौन है ये जो माइक्रोफोन में रोबोटिक वॉइस निकाल रहा है? 54.8 ठीक है। डोंट यूज माइक्रोफोन वैभव। डिस्टर्बेंस हो रही है बहुत। हाँ, 54.8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिसका नहीं आया है उसने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, नथिंग एल्स। तुम्हें आता है मेथड। मीडियन कितना आ रहा है सबका? मीडियन निकालो, टेक के टाइम। 52। 52। एक दो ही बच्चे दिख रहे निकालते हैं भाई, सब निकालो सब। मीडियन एक का 40 आ रहा है, एक का 52 आ रहा है। और भी निकालो जरा, देखते हैं। 52 इज द करेक्ट आंसर। काम में क्या गलती करी है बच्चे? क्या अरेंज करा तुमने? इसको अरेंज किया असेंडिंग डिसेंडिंग में? ओ नहीं सर। हाँ, तो यही मूव हो गई ना, इसलिए मैं कहता हूँ अरेंज करना इज इंपॉर्टेंट। Don't forget to arrange. The very first step for the median is to arrange. Otherwise, you will end up जो अभी तुमने गलती करी है, ठीक है? Glad you did this mistake so that everyone could see. Okay? चलो, तो ये भी क्वेश्चन डन है। अब कर रहे हैं हम थर्ड वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट। सेकंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कैलकुलेटिव नहीं आएगा एग्जाम में। लेकिन एक्स वाले आते हैं, तो एक्स वाले ध्यान से समझ लें भैया, एक्स की वैल्यू निकालने वाले जो है। Okay. So question number 3. As you can see, कौन रीड करेगा? हाँ, सांभवी you read it बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3. The following observations have been arranged in ascending order. If the median of the data is 63, find the value of x. Right. So हमें निकालना है इसका मीडियन। चलो तो निकालते हैं। सबसे पहले इसका मीडियन दे रखा है, सॉरी मीडियन दे रखा है 63। मीडियन इज ऑलरेडी गिवन 63। एक्स की वैल्यू निकालनी है, राइट? असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, नो नीड टू अरेंज। अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब n क्या है? इवन है, इवन है। इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता था मीडियन का? n/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2, राइट? So n/10/2 is 5, fifth observation, 5 plus 1, sixth observation over 2. I'm doing it directly. Hope तुम लोगों को समझ आ रहा है। Okay. Fifth observation, 1 2 3 4 5 x. Sixth observation, next wali x plus 2. So that means my median is, wait, yes, x plus 2 over 2, right? तो ये कितना हो जाएगा? 2x plus 2 over 2। और मीडियन हमें कितने के बराबर दे रखा है? 63। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, so that will be 126. Now subtract by 2 on the right hand side, that will be 124.
Now divide by 2. That will be 62 and we are done. X की वैल्यू कितनी आ गई? 62. सबको सामने आया? Yes or no? Yes, sir. Easy है, right? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है. We can repeat it. जल्दी बोलो, किसी को डाउट है? No, sir. गुड, वेरी गुड. अब फोर्थ क्वेश्चन का जल्दी से मॉड बता दो. कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? नंबर 14. 14. ओके, सो 14 इज द मॉड. देख लेना एक बार, ठीक है? मैंने काउंट नहीं करा, तुम लोगों पे बहुत ट्रस्ट है मेरे को, ठीक है? एंड दैट इज द चैप्टर. आई गेस इतना ही है. फिफ्थ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, तुम लोग ट्राई कर लेना खुद से. स्टेटमेंट वाला, ट्रू फॉल्स वाला. अच्छा, फिफ्थ है भैया, फिफ्थ है. फिफ्थ तो आता है, सिक्स्थ नहीं आता है. सो फिफ्थ वाला और करना है. अगर लिंक खत्म होगा, यू विल जॉइन इट अगेन. सो लेट मी अपलोड द सेकंड पिक. अब हम मीन निकालेंगे जब फ्रीक्वेंसी होगी. अब डिस्क्रीट नहीं है, अब फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक है? तो जब फ्रीक्वेंसी वाला होगा, देखो एक तो हमने डिस्क्रीट वाला पढ़ लिया जिसमें फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स आई, मतलब सबका एक्स का सम कर दो, एन से डिवाइड कर दो. अगर ऐसे होगा फ्रीक्वेंसी वाला, तो हम मीन कैसे निकालो? कि सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई. भैया ये क्या सिग्मा सिग्मा करे जा रहा है? सिग्मा मतलब होता है ऐड करना, ठीक है? अब इसको कैसे करते हैं, देखो. तुम टेबल बनाओगे. यू विल मेक दिस टेबल अगेन, राइट ओवर हियर, right over here like that. If the link and ends, you will join it again quickly, वो भी. So ये है. So यहाँ पे आइटम्स होंगे तुम्हारे, जो भी हैं ये आइटम्स कहलाते हैं xi. ये तुम्हारा फ्रिक्वेंसी कहलाता है fi, right? So 3000 है, 4000 है, I have 5000 as well, I have 6000, 7000, 8000, 9000 and 10,000. इतना ही है ना? इसके 16 हैं वर्कर्स. सैलरी जिनको मिल रही है 12 को मिल रही है, 10 को मिल रही है, 8, 6, 4, 3, 1 भाई साहब है जो 10,000 कमा रहे हैं बस. अच्छा, अब तुम एक और यहाँ पे कॉलम बनाओगे. उसमें क्या लिखोगे? उसमें लिखोगे एफ आई एक्स है. उसका मतलब क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 16 टाइम्स 3 इज 48, सो 48,000. 12 टाइम्स 4, 12, 24, 36, 48 अगेन, राइट? 5, this is 50,000, right? 6 times 8 is 48 again. 6 times 7 is 42. So 0, 0, 0. 4 times 8 is 32. 0, 0, 0. 3 times 9 is 27. 0, 0. 1 times 10 is 10,000. So एफ आई एक्स आई निकाल दिया. फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब सारे सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड करो और नीचे सिग्मा एफ आई करो. सिग्मा एफ आई करोगे तो क्या आएगा? देखो सिग्मा एफ आई करोगे तो 60 आएगा, इन सबको ऐड करोगे तो, ठीक है? इन सबको ऐड करके देख लो, तो यही होता है हमेशा एफ आई, सिग्मा एफ आई. अब इन सबको ऐड करना है. अब इन सबको भैया इतना बड़ा कैलकुलेशन, हाँ भाई करना पड़ेगा, बड़ा नहीं है वैसे. 0 पीछे, 3 0 पीछे. अब देखो 7 2 9, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 8 35. तो 3 और 5, 3 4 7, 4 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30. So I got sigma fi 305,000 and this is 60. When you divide this guy with 6, that is your answer. इसको हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे. It can be in point, ऐसा कुछ नहीं कि डेसिमल में नहीं हो सकता. अब बताएं इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो what will I get? If I divide, obviously it will be decimal, but क्या आएगा? If I divide it, I will get 5083.3. ठीक है? ऐसे डिवाइड बच्चों की तरह करके देख सकते हो. ये सबको क्लियर हुआ? Yes or Yes, no? भैया 5083 आएगा भैया. क्लियर है भाई सबको? Yes, भैया. So that's it. Yes, sir. See you next time. Good evening. Chapter is finished.